Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we are diving into Bitrix24 CRM and by the end, you will have all the insights you need. Bitrix24 CRM is an all-in-one customer relationship management tool designed to streamline business processes. It helps businesses manage leads, deals, and customer interactions efficiently while offering powerful automation and analytics. So, grab a seat, hit that like button, and let's get started. Now, in the Bitrix24 CRM, we can create multiple leads. Also, we can create fields, stage creation, pop-up generation, and lead processing. We'll see one by one. Lead generation in Bitrix24 CRM. Lead can be generated by the manual entry. Also, we can capture the lead automatically. We can create leads by email integrations. Also, we can get multiple leads by CRM forms and social media integration. Field generation. In the field generation, we will create multiple fields by using the data types. We have multiple data types so that we can generally create multiple leads or fields so that we can save our data into that fields. By creating the fields, you have to just create the multiple fields by choosing that data types and we can save our data into that fields. Stage creation for the leads. We can create multiple stages into the lead section. Also, we can set the access permissions on that settings for these particular stages. Also, we can assign colors for the better understanding. We can also create, add or edit the lead stages. Also, we can create multiple stages in lead and deal section. Now we will see lead processing. We can assign multiple leads by changing the responsible person, department wise or user wise. Qualify leads. When a lead is ready to advance, we can directly create on convert. So we can choose the entity to create such a contact, company or deal. Automate lead processing. For the lead processing, in the automations, we can create multiple automations. We can create multiple triggers, just like sending emails, assigning leads, and assigning tasks or moving leads to different stages of the sales funnel. Communicate with leads. We can directly create multiple activities like sending mails, document sending. We can create multiple follow-ups or multiple actions we can create on the particular lead. Also, we can add comments and we can add meetings to that particular lead. Pop-up generations. In the leads, we can create multiple pop-ups so that for the particular stage, it will pop up and if you enter the data, then it will move to the next stage. It will be very useful to our business. Now we will see the deal generation in Bitrix24. After qualifying lead, the deal is generated by default. If you have created multiple pipelines, then we have to choose that pipeline so that deal will be generated into that particular pipeline. So we will see what are the deals. Deals in Bitrix24 represent potential sales or businesses transaction associated with customers, facilitating effective CRM management. For this, we have to just navigate to CRM. So we can directly create a lead so that there will be option for the lead creation. We have to just click on create lead, create deal so that we can directly generate a deal.
Require details for manual deals. We can generally we can generally inputs details like deal name, assign, responsible person, customer details. We can directly input the data into that particular deal and we can save the information about that deal. Deal can be generated automatically from qualified lead also, or we can create manually. Also, we can create multiple automations on the particular deals, just like in deal section. Stages and pipeline management. Stages and pipeline management is only essential for the deal section. It is not available in lead. You can see here there are multiple pipelines. If you are running multiple businesses or multiple services, then it is very useful to you so that it will be directly you can directly access your business to that pipeline. We can define multiple customized stages also. We can add or modify stages. We can directly save these pipelines. Also, we can do multiple settings for those pipelines. We can manage these pipelines very effectively because this will separate from each other. We can generate the pipeline with their names. Also, we can define stages in the multiple pipelines in the different process. We can directly assign deals to particular pipeline. Pop-up customization for deals. Just like lead, we can create multiple pop-ups for the deals also. So purpose of the pop-ups is pop-ups in Bittrex 24 facilitate the dynamic collection of deal related information, enhancing user interaction and data accuracy. This is very essential for your business. Navigating settings. Access the pop-up configuration by navigating to CRM setting. Then we can directly select a form and report setting followed by form field to begin customization. Customizing fields. Just like lead, we can directly customize multiple fields. In the deal creation form, by making essential fields as mandatory, ensuring critical information is always collected. So basically, customized fields is useful to collect the information of your critical data. Optional fields. Incorporate optional fields for additional details that enhance the deal's context without complementing the form. Saving configuration. We can ensure to save the configuration which will make the updated form appear as a pop-up when adding new deals. Deal 1. Deal closure. Now we will see the deal closure. We have to just we have to just open any deal, okay, and in that we have to just input all the data that is deal related data so that we can carefully examine the deal details to ensure that all necessary actions have been completed before finalizing. Update matrix. Upon marking the deal won transition to the closed section and relevant metrics will be automatically updated. If the deal won is not successful, it should be marked as the deal lost with a record of the reason for future analytics and improvement. If we drag the deal to the deal won stage in the pipeline, it will mark as a won and deal will be won for the confirm. It will confirm the success of the leads. The deal now it's success. Now we will see the customer section. In the customer section, we will see the contact, companies, deals, and activity section. In the contact section, we will store and manage the information about our individual clients or contacts information.
ensuring easy access to essential details for effective communication. Companies. We can create or maintain multiple companies, multiple organizations, including associate contacts, clients, allowing for organized relationship management and insightful analytics. In the deal section, we can track the sales process for each customer, enabling you to monitor progress, forecast outcomes, and strategies effectively for closing deal. We can manage our activities for all meetings, call, tasks, and emails linked to customer in one place, ensuring seamless communication and follow-up. Important functionalities in customer management. Customer segmentation. Utilities tags or custom fields to categorize customers effectively, enabling targeted campaigns that improve engagement and convert rates. Regular data updates. Maintain accurate customer records by regularly updating information, ensuring that all interactions and engagements are based on the most of the current data. Adding a company. To add a company, we have to go to the CRM and then companies. Then we can enter the required details and click on save to integrate the company into your system. Activity management. We have to manage customer interactions by scheduling calls, tasks, and emails directly from customer profiles. We can set timers, reminders for essential follow-ups to enhance communication. Utilization of tags and filters. Employ tags and filters to facilitate efficient searches within the CRM, allowing quick access to essential customer information and improving productivity. Link a deal to a customer. To link a deal to a customer, open the contact or company from the profile, directly click on the deal tab, and you have to just select the associate deal option. The deal will be created for that particular customer or companies. Automations. We can implement automation rules to streamline the recurring tasks such as sending work welcome mails to newcomers or reminders for deal follow-ups, saving times, and ensuring consistency. CRM analytics. Leverage CRM analytics tool to monitor customer interactions and evaluate sales performance, providing insights that drive strategy decision making. Export customer data. To export customer data, we have to go to the CRM, contact company, or we can directly go to the lead or deal section. Here we will get the option for the export the CRM data into Excel or by the CSV. We can directly download this exported data. Permissions. Ensure data security by restricting access to customer records based on user roles, protecting sensitive information, and maintain privacy. We can set multiple access permissions. We have the multiple parameters. We have to deny access, personal, department, sub-department. Likewise, we can set access permissions. Add a new contact. To add a new contact, we have to just go to the CRM contacts and we can just add a field, add a contact, and we can just fill the necessary details and we can just directly save and store the information. Sales section. In the sales section, we will see the invoices and estimates. The sales section in Bittrex24 CRM simplifies sales management, allowing businesses to efficiently navigate through various sales activities with ease. Users can quickly create their detailed invoices, ensuring accurate billing and enhancing the professionalism of client interactions. Bittrex24 CRM enables the generation of accurate estimates, providing clients with clear cost projection before final transaction. The platform facilitates seamless transaction management, reducing errors and improving overall operational efficiency.
Businesses can provide clients with comprehensive cost details, ensuring transparency and fostering trust in client relationships. CRM analytics. In the CRM analytics, we will see the multiple options: sales funnel, sales performance, customer insights, channel analytics, revenue analysis, custom reports, getting started, best practices. We will see the one by one. Sales funnel is a visual representation of the sales process stages from leads to closure. It tracks deal progression and it identifies bottlenecks and evaluate conversion rates. Insight include the number of deals in each stage and expected versus actual revenue. Sales performance reports detailing individual and team sales performance, aiding it productivity evaluation and target setting metrics, including closed deals per salesperson, generated revenue, and average deals value. We can create custom reports also for the specific business needs. We can directly access through that. Go to the analytics options and directly click on custom reports. By using templates or designing new reports with selected data sources and filters. CRM forms and add-ons. In the CRM forms, we can create multiple fields to the particular same CRM form. We can automate record creation, integrate options, styling and branding, validation and automation. In the CRM form, we will create multiple fields. Also, we can create multiple pop-ups and we can create multiple required fields. We can select the target entity so that we can directly land this form into the particular entity, just like lead, deal, or SPA. Witness 24 CRM access permissions and recycle bin. In the access permission, we will set the multiple access permission user wise, department wise, and many more. We can set the access permission for lead, deal, contact, companies. You can directly control the access to these sections at different levels, ensuring that only the rights users can view or edit them. Role based access. We can create a role based access in the Bitrus 24 CRM. There will be a multiple roles. Also, we can create multiple roles: administrator, management, team leads, employees, agents, external users, and so on. Custom fields. You can set the permissions on custom fields to restrict to allow visibility and editing based on the user role. Activity and document. We can define whether users can create, view, or modify activities, email, tasks, and other documents linked to the CRM records. We can directly set the permissions by selecting the user or group and configure their permissions by defining access levels. वीडियो में हम देखने वाले हैं Bitrix 24 CRM फंक्शन। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लीड, डील, कस्टमर्स डेटा, CRM फॉर्म्स एंड मेनी मोर थिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं लीड क्रिएशन से। अगर हम को कुछ लीड पे हम काम कर रहे हैं और जो भी लीड्स आ रही है, बेसिकली वो बहुत सारे सोर्सेस से आ सकती है, जैसे कि ईमेल लीड्स हो या फिर CRM फॉर्म से आ रही है या फिर वेबमेल से आ रही है या फिर वेबसाइट से आ रही है। यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ लीड फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा क्रिएट लीड करने का। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप फॉर्म रिलेटेड या फिर इस लीड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर सकते हो। ये हमारी फील्ड्स है जो हमने बनाई है। आप यहाँ से डायरेक्टली आपके कस्टम फील्ड्स भी बना सकते हो। ये डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स चूज करने के बाद डायरेक्टली आप फील्ड्स बना सकते हो और इसमें डेटा सेव कर सकते हो।
ऑल्सो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड बना सकते हो, जो भी आप फील्ड पे अगर मैंडेटरी रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उनको कॉन्फ़िगर करके रिक्वायर्ड कर सकते हो। सो बेसिकली आप लीड जैसे डील में भी हम ये फंक्शन कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कान्बान व्यू। जैसे कान्बान व्यू की तरह और एक व्यू है जिसका नाम है लिस्ट व्यू। आप लिस्ट व्यू में भी लीड्स व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको वन बाय वन देखने को मिलेगी। यहाँ पे सारा डेटा दिखेगा आपको। और अदरवाइज आप यहाँ पे एक ऑप्शन भी देख सकते हो फिल्ट्रेशन का। मल्टीपल लीड्स रहेंगी मल्टीपल स्टेजेस पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाइज देखना है या फिर उनके क्रिएशन डेट के अनुसार आपको चेक करना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कस्टम फील्ड या रिलेटेड कोई भी डेटा रहेगा, इसे आप फिल्टर कर सकते हो। डेटा फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये हुआ लीड जनरेशन। अभी आप लीड जनरेशन की तरह यहाँ पे जो भी लीड्स आ रही है, वो यहाँ पे आपको न्यू स्टेज में दिखेगी। अभी ये है स्टेजेस जो हमने कस्टमाइज बनाई है। आप डायरेक्टली यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेट करके यहाँ से स्टेज भी बना सकते हैं। जैसे अनअसाइन दिख रहा है, जैसे मैं इन प्रोग्रेस एक न्यू स्टेज बना रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको नाम भी दिया और मैं इसको कलर भी दे सकती हूँ यहाँ से। तो हम वैसे मल्टीपल स्टेजेस हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो कस्टमाइज स्टेजेस है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्टेजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस्ट एंड वॉन, डील वॉन और लीड वॉन और डील लॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लीड आ रही है, यहाँ पे हम पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी क्लाइंट्स की। इसके साथ साथ क्लाइंट का जो डेटा रहेगा वो हम फीड करेंगे। और उसके बाद अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड रहेगा तो ये लीड वॉन हो रही है। लीड वॉन मतलब क्लाइंट ने इंटरेस्टेड है और अभी हम उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है। इसके साथ-साथ आप और एक ऑप्शन देखोगे ऑटोमेशन ज़ोन। आप मल्टीपल ऑटोमेशंस लगा सकते हैं। इसमें मल्टीपल आपको ऑटोमेशंस मिलेंगे, जैसे मेल सेंड करने के लिए, नोटिफिकेशन, अलर्ट मैसेज जाने के लिए। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल ऑटोमेशंस यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी नई लीड आई है उनको वेलकम मैसेज चला जाए, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। तो ये वेरियस ऑटोमेशन से आप अपना सीआरएम का वर्कफ्लो बहुत ही स्ट्रांगली अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अभी ये जो भी लीड्स है, यो यहाँ पे आपको स्टेज में कानबान व्यू में दिखेगी। अगर आप जो लीड्स है, जो नई लीड्स आ रही है, वेबमेल से रहेगी, सीआरएम फॉक्स से रहेगी या फिर मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे, सोशल मीडिया से आ रही है, तो फिर यो वो सब आपके फर्स्ट स्टेज पे ही अप्लाई रहेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज में दिखेंगे, उसके बाद आप उसके साथ परफॉर्म करोगे। अगर आपके पास ऐसे कोई न्यू लीड्स हैं जो एग्जिस्टिंग है और उसके आप ऑलरेडी काम कर चुके हो और आपको उसको डेटाबेस में लैंड करवाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। जो भी आपकी फाइल रहेगी वो एक्सेल शीट में रहेगी और वो मस्ट भी सीएसवी फाइल होनी चाहिए। जैसे सीएसवी फाइल आप कोई अपलोड कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दी है सिलेक्ट, समझिए कि सिलेक्सिव फाइल है। यहाँ पे हम आस्की कोड डालेंगे। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल अभी मैं कर रही हूँ तो मेरा नाम आएगा, जो भी इंपोर्ट करने वाला डेटा है उसका नाम रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आ जाएगा और यहाँ पे हम कॉमा सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको बस फील्ड मैपिंग करना है। फील्ड मैपिंग में आपको जो भी आपकी फाइल है जहाँ पे आपने जो भी कॉलम्स के नेम दिखे हैं और जो भी लीड्स के नाम है वो हमें मैच करने रहते हैं। जैसे वो मैच होंगे और डेटा टाइप से मैच हो जाएंगे, नेक्स्ट करने के बाद डायरेक्टली आपके लीड्स यहाँ पे लीड सेक्शन में लैंड हो जाएगी। ऐसे ही आप डायरेक्टली मल्टीपल डेटा जो एग्जिस्टिंग है, जो आप यहाँ पे मल्टीपल लीड्स लैंड करवा सकते हो। इसी के साथ-साथ ये जो भी डेटा है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर समझिए आपको रिपोर्टिंग के लिए अगर आपको लीड एक्सपोर्ट करना रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से लीड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे आपको सेकंड में आपको एक्सपोर्ट लीड टू एक्सेल का ऑप्शन भी मिलेगा। डायरेक्टली रन करने के बाद आपको ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी। तो आप ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
इसी के साथ-साथ हम देख रहे हैं अभी लीड वॉन होने के बाद क्या होता है। अभी समझिए जो भी लीड है, अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है, मैं कोई एक लीड उठा रही हूँ और अभी मैं प्रोसीड कर रही हूँ। प्रोसीड में अगर मैं ये लीड वॉन कर रही हूँ, समझिए ये अगर मेरी डील अभी कन्वर्ट हो रही है, तो आई विल गेट दिस पॉपअप मैसेज। सो फॉर द पर्टिकुलर फील्ड्स मैंने यहाँ पे पॉपअप जनरेट किए हालांकि मुझे ये डेटा मेरे लीड में होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पॉपअप सेट किया है। ठीक है, पॉपअप सेट करने के बाद जब तक ये मैं पॉपअप फिलअप नहीं करूंगी तब तक मेरी लीड नेक्स्ट मूव नहीं करेगी। अभी मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी मेरी लीड है वो मुझे सेव करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं डील में कॉन्टैक्ट और कंपनी का डेटा सेव नहीं कर रही हूँ तो डायरेक्टली मैं डील पे सेव करूंगी। अगर मुझे डील और कंपनी का डेटा चाहिए तो मैं डील और कंपनी के साथ चली जाऊंगी। तो मतलब वेरियस ऑप्शन है जहाँ से आप डायरेक्टली डील जनरेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे डील पे क्लिक किया हूँ। अभी ये करने के बाद मुझे यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है, ये है डील पाइपलाइन। डील पाइपलाइन मतलब यहाँ पे मल्टीपल पाइपलाइंस है जो बनाई हुए हैं। अभी जो लीड है आप देख पाओगे, लीड और डील में एक फर्क है, वो है मल्टीपल पाइपलाइंस। लीड में कोई पाइपलाइन बना सकते हैं, लेकिन डील में वो हमें वो फैसिलिटी है कि हम वहाँ पे पाइपलाइन बना सकते हैं। इसका मेजर रीजन वही है कि जो भी आपके पास इंक्वायरी आई, जो भी लीड आ रही है, आप उसको पहले वैलिडेट कर रहे हो। वैलिडेशन होने के बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए आप लीड पे डील पे उस पे काम कर रहे हो। तो वैलिडेशन के लिए लीड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे कोई पाइपलाइंस नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और लीड वॉन कर रहे हैं। डील लीड वॉन करने के बाद वो डायरेक्टली पर्टिकुलर जो हमने डील की पाइपलाइन सेट की है वहां पे जाएगी। अभी डील की पाइपलाइंस कितनी है? अभी जो मल्टीपल पाइपलाइन, समझिए आपका बिजनेस है जो मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहा है। जैसे बिजनेसेस मल्टीपल स्टेजेस के रहेंगे, जैसे आपके अलग अलग सर्विसेज रहेगी, तो आप अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग से आपका खुद का बिजनेस वहां पे सेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप मल्टीपल आपके जो भी बिजनेस डोमेन रहेंगे उसके हिसाब से आप अपना खुद का एक पाइपलाइन बना सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल पाइपलाइंस है और मल्टीपल पाइपलाइंस है, उसी के रिलेटेड वो सब डेटा हमने फिल करवाया हुआ है। जस्ट लाइक लीड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी स्टेजेस बनाए हुए हैं। स्टेजेस में और भी डेटा है, जैसे डील वन है और डील लॉस, ये बाय डिफॉल्ट फील्ड्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये कानबान व्यू है, ये लिस्ट व्यू है। जैसे हमने लीड में देखा था, यहाँ पे भी आप डेटा फिल्टर कर सकते हो। डेटा फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स डालने के बाद आप डायरेक्टली अपना डेटा फिल्टर कर सकते हो। जैसे हमने लीड इंपोर्ट का देखा था, वैसे आप यहाँ पे डील भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा जो आपको इंपोर्ट करवाना है आपके डील्स में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो। इसी के साथ साथ आपके आप यहाँ पे कानबान व्यू की तरह लिस्ट में भी ये डेटा पूरा देख सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा, वैसे ही हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम पूरा डेटा यहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। उसी के साथ साथ हम ऑटोमेशन भी सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑटोमेशन की भी फैसिलिटी है, जो भी डील पे आपको जो भी ऑटोमेशन लेना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। इसी के साथ-साथ अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो है एक्टिविटीज का। हम पहले लीड में जाके देखते हैं। अभी जो हमने एक्टिविटीज देखा, वो पर्टिकुलर आप किसी भी एक लीड पे क्रिएट कर सकते हो। अभी समझिए आपको एक लीड पे फॉलोअप या फिर कोई एक्टिविटी क्रिएट करनी रहेगी। लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म दिखेगा। फॉर्म मतलब ये पर्टिकुलर एक क्लाइंट का डिटेल्स रहेगा और उस लीड का डिटेल्स रहेगा जो आप फिल कर रहे हो, और राइट साइड में दिखेगा कि आप उस लीड पे क्या-क्या वर्क कर रहे हो, क्या-क्या एक्टिविटीज़ बना रहे हो। अभी समझिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ मुझे बनानी है कि मुझे क्लाइंट को कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेट सेट करूँगी 13 तारीख को, और यहाँ पे मैं टाइम सेट कर दूँगी। अभी जब मैं सेव करती हूँ तो ये मेरी एक्टिविटी बन जाएगी, और यहाँ पे मुझे फ़ॉलो-अप करने के लिए मैं यहाँ से रिमाइंडर भी डालूँगी। 30 मिनट्स बिफोर आना चाहिए, तो 30 मिनट्स बिफोर मुझे ये अ, रिमाइंडर आता जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं एक लीड पे कमेंट भी करूँगी। अगर मुझे कुछ कमेंट करना रहेगा इस लीड पे, जिसका एक्सेस अगर मेरे फेलो
कल इसको रहेगा तो वो नोटिफाई हो जाएंगे कि इस लीड पे ये काम चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं मीटिंग्स भी शेड्यूल करवा सकती हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मीटिंग शेड्यूल करवा सकती हूँ, जूम ले सकती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकती हूँ, ईमेल्स कर सकती हूँ। तो ये एक्टिविटीज है तो आप पर्टिकुलर लीड पे कर सकते हो। जस्ट लाइक लीड हम डील में भी सेम कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर डील पे अगर हमें कुछ भी एक्टिविटीज बनानी है, फॉलोअप जनरेट करने हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से फॉलोअप्स और एक्टिविटीज बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कस्टमर सेक्शन। यहाँ पे दो कस्टमर सेक्शंस में आप डेटा सेव कर सकते हो, एक है कॉन्टैक्ट्स और एक है कंपनी। कॉन्टैक्ट्स में जो भी आपके क्लाइंट्स का डिटेल्स रहेगा, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन और उनका नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो सब डेटा आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना खुद का कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द कॉन्टैक्ट क्रिएट बटन। यहाँ पे आप सैल्यूटेशन डाल के, यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी क्लाइंट रिलेटेड, आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप कंपनीज के भी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद और भी आपको ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा जो आप लैंड करवाना चाहते हो बिट्रिक्स में डायरेक्टली, तो यहाँ पे भी आपको जस्ट लाइक लीड यहाँ पे भी इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन है। आप कंपनी के साथ साथ कॉन्टैक्ट भी इंपोर्ट करवा सकते हो और एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टर्स दिए गए हैं जिससे आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली कंपनीज फिल्टर कर सकते हो। कंपनीज के साथ साथ कॉन्टैक्ट भी आप फिल्टर कर सकते हो और पूरा डेटा आपको विजिबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ से और एक ऑप्शन है, वो है हमारा एडोस में सीआरएम फॉर्म्स। सीआरएम फॉर्म्स मतलब अगर आप यहाँ से कोई फॉर्म बना रहे हो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्लाइंट का चाहिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे यहाँ से आपका सीआरएम फॉर्म बना के डायरेक्टली डाल सकते हो। वहां पे जो भी फॉर्म का इंफॉर्मेशन वो फिल कर रहे हैं, डायरेक्टली आप डिटेल्स में उसका लीड बना सकते हो। यहाँ से आपको डायरेक्टली सीआरएम फॉर्म पे ऐड क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली आप सीआरएम फॉर्म ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है सीआरए फॉर्म के। अगर आपको फीडबैक फॉर्म लेना है तो आप डायरेक्टली फीडबैक फॉर्म सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको मल्टीपल पेज फॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म चाहिए उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हो। यहाँ पे ये आपका फॉर्म है, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली एडिट करके उसमें मल्टीपल फील्ड्स ऐड करवा सकते हो। जैसे अगर आपको कोई भी जो डेटा है उसमें आपको बर्थ डेट या फिर जो भी डेटा आपको ऐड करवाना रहेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से मल्टीपल फील्ड्स ऐड करके वो डेटा ले सकते हो। ये जो सीआरएम फॉर्म है उसका कोड आप अपने वेबसाइट पे डाल के डायरेक्टली वहां से जो भी वहां से जो भी फॉर्म भरेगा उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे बिट्रिक्स में लैंड करवा देंगे। इसी तरह आपको आप अपने सीआरएम फॉर्म से लीड जनरेट करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ और एक है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग में आपके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे या फिर सर्विसेज रहेंगे, आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट, सर्विस और सेक्शन। हम सेक्शन वाइज प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट क्रिएट करवा सकते हो। अभी मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं इस प्रोडक्ट का नाम दे रही हूँ कुछ, जैसे बिट्रिस 24, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ऐड करवा लीजिए। यहाँ पे उस प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपको और भी फील्ड्स की जरूरत है तो डायरेक्टली जस्ट लाइक लीड आप यहाँ से भी और फील्ड जनरेट करवा सकते हो और ये आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप राइट साइड में देख पाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस है, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट एक क्रिएट करवा सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करवा रहे हो यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू में विजिबल हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन मिलेगा।
आपको अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी पैरामीटर से आप अपना डेटा फिल्टर करवा सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपको इंपोर्ट करवाने हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट में इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो। ठीक है? उसी के साथ-साथ आप यहाँ पे एक्सेस परमिशन का भी ऑप्शन है। जो प्रोडक्ट कैटलॉग को व्यू करने का ऑप्शंस है, उसके हिसाब से आपको सेट करवाना है। ठीक है? यहाँ पे आपको मल्टीपल पैरामीटर्स दिखेंगे जो एक्सेस परमिशंस रहेंगे। इसके हिसाब से आप अपने एम्प्लॉइज़ को एक्सेस परमिशन सेट करवा सकते हो। अगर आपको रोल्स ऐड करवाने हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट रोल कर दोगे, रोल को नाम दे दोगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ को ऐड करवा दोगे। जो भी आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करने का उनको ऑप्शन देना है तो वैसे आप यहाँ पे जो भी उनको ऑप्शन देना है आप यहाँ से डायरेक्टली सेव करके उनको एक्सेस करवा सकते हो। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए अलग से एक्सेस परमिशन सेट करवा सकते हो। नेक्स्ट है मोर सेक्शन में आप देखोगे यहाँ से भी आप सीआरएम के लिए एक्सेस परमिशन सेट करवा सकते हो। सीआरएम के लिए जो भी मतलब आपके एम्प्लॉयज है उनके लिए आप हिसाब से ऐड एक्सेस परमिशन में उनको ऐड करना है, डायरेक्टली उनको रोल सेट करवा के यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल पैरामीटर्स है, रीड, ऐड, एडिट, डिलीट। ठीक है? यहाँ से आपको जैसे आपको पर्सनल परमिशन देना है उनके पर्सनल लीड के लिए तो आपको पर्सनल देना है, डिनाई एक्सेस है, पर्सनल एंड डिपार्टमेंट ऑल है। तो आप उसके हिसाब से आप उनको वैसे एक्सेस परमिशन सेट करवा सकते हो। Bitrix 24 CRM. Thanks for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more content. Drop your thoughts or questions in the comments below, and I will see you in the next one. Thank you.